Hello everyone, myself Khyati Vyas from JNP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is S's. We are dealing with chapter number 2 and this is my session number 1 for this chapter. So chapter number 2 is latitudes and longitudes. So what are we going to do in today's session? In today's session, I will introduce the chapter to you first, then we'll look into the vocabulary words through PPT, then after that I'll make you understand what are latitudes and lastly which are the important latitudes. So for the introduction, latitudes and longitudes, they are some lines, some imaginary lines that are drawn on the globe or on the map. Why are these lines drawn? These lines will help you to locate a place. These lines will help you to locate a place. Okay? How will they help you to locate the place? We will see that in the chapter ahead. So to start with, let us see the vocabulary words. Okay, so let's move to the PPT now. Chapter number 2, Latitudes and Longitudes. First vocabulary word, globe. Globe, a model of the earth. A model of the earth. See in the picture, this is a globe. It is a model of the earth. It is a model of the earth. It looks exactly like the earth. But is it actually earth? No, it is actually not earth. But it is human-made model of the earth to make us understand the earth better. ये अर्थ का एक मॉडल है जो आपकी मदद करता है ये सीखने के लिए कि अर्थ कैसा दिखता है, कैसे वो रोटेट करता है, एक्सेट्रा. कहाँ पर वाटर बॉडीज है, कहाँ लैंड है. In this picture you can see the green and brown colors. They are all the landforms or land masses, and the blue color are the water bodies, and the white patches you are able to see, they are either snow or the clouds. क्योंकि जब हम आकाश में से पिक्चर निकालते हैं तो उसके क्लाउड्स भी आ जाते हैं. So this is a globe. What do you mean by globe? Globe is a model of the earth. Clear, kids? Okay. Next one, horizontal. Horizontal means parallel to the plane of the horizon. Parallel to the plane of the horizon. Horizon किसे कहते हैं? Normally, if you have been to some beach, अगर आप बीच पर गए हो तो आपने देखा होगा कि दूर जहाँ पर पानी दिखता है वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि the water is meeting the sky. वाटर और स्काई एक दूसरे को टच करते हुए दिखाई देंगे. So that is a horizon. In the picture you can see the cross lines, sleeping lines which you call sleeping lines. दिख रही है? Yes, they are horizontal lines. ऐसी sleeping lines जो होती है ना उसे horizontal lines कहते हैं. क्या कहते हैं? Horizontal lines. Clear? So horizontal means parallel to the plane of the horizon. यहाँ पर आप देखोगे कि ये लाइंस आप कितनी भी दूर तक, जो छोटी छोटी लाइन है उसे स्केल लेकर आगे भी अगर स्ट्रेच करोगे, एक्सटेंड करोगे
तो फिर भी वो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी क्रिस क्रॉस नहीं होंगी, टच नहीं करेंगी, वो पैरेलल ही जाती रहेगी। मतलब कि दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम ही रहेगा हर जगह पर, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड longitudes. Longitudes means the imaginary line that run from north to south on the globe. The imaginary line that run from north to south on a globe. In the picture you can see a globe, right? Yes. I already explained to you, globe is the model of the earth. So here you can see the globe. तो ये longitudes क्या है? They are imaginary lines. मतलब ये जो lines आपको globe के ऊपर दिख रही है ना, वो सिर्फ imaginary lines है. They are actually not present on the globe. We just imagine them. These lines start from the north. ऊपर नॉर्थ पोल है, वहाँ से स्टार्ट होके नीचे साउथ पोल तक एक्सटेंड होती है। Clear kids? So these are longitudes. All the longitudes start from north pole and end up to the south pole. तो all the lines of longitudes they meet at the poles. पोल्स पर आप देखोगे कि ये सारी लाइंस जो हैं लॉन्गिट्यूड्स की वो दोनों पोल्स पर जाकर एक दूसरे को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मीट हो जाती है। कॉमन पॉइंट है ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लैटिट्यूड। जो हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ा ना वो रिलेशन विद लैटिट्यूड्स ही था। Latitudes means the imaginary line that run from east to west on the globe. The imaginary line that run from east to west on a globe. इस globe में आप देखोगे कि ये horizontal lines हैं and they start from east. ईस्ट जहाँ पर इक्वेटर लिखा है वहाँ से स्टार्ट होके वेस्ट की तरफ ये लाइंस रन होती है। बट जो लॉन्गिट्यूड्स थी जो दोनों पोल्स पर मीट होती थी उस तरह से ये लैटिट्यूड्स नहीं होती है मीट। दे नेवर मीट ईच अदर और नेवर क्रिस क्रॉस ईच अदर। ये लैटिट्यूड्स है वो पैरेलल लाइंस ही होती है। जो इक्वेटर है डॉटेड लाइन आपको दिख रही है 0 डिग्री वाली, दैट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। उसके बाद वाली जो लैटिट्यूड्स है ऐसे 30 डिग्री नॉर्थ, नीचे 30 डिग्री साउथ, ये सारी की सारी जो है वो सर्कल जो है उसका छोटा 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 होते जाता है। और जब ये 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पर आकर लुकती है लैटिट्यूड्स, तब ये सिर्फ एक छोटा सा डॉट बन जाती है। क्लियर? सो जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स थी वो सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स एक जैसे लेंथ की थी, बट लैटिट्यूड्स में द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज द इक्वेटर and it gets decreased as they move towards the pole. दोनों पोल की तरफ जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ती जाती है तो वो उनकी लेंथ कम होते जाती है, सर्कल छोटा होते जाता है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर? यस। नेक्स्ट वन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स 1/2 of the earth। 1/2 of the earth। यहाँ आपको अर्थ दिख रहा है ना? इस अर्थ के सेंटर में एक लाइन है, इट इज नोन एज इक्वेटर। और ये लाइन अर्थ को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। तो ये जो आधे आधे 2 टुकड़े हैं ना, हर टुकड़े को हेमिस्फीयर कहा जाता है। फुल स्पीयर मतलब स्पीयर का मतलब है फुल राउंड। हेमिस्फीयर मतलब हाफ सर्कल होता है या हाफ राउंड होता है ना, स्पीयर का
आधा टुकड़ा, उसे हेमिस्फीयर कहते हैं। क्लियर? सो आप देख सकते हो इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and the part below the equator towards the south pole, it is called southern hemisphere. Equator divides the earth into two equal halves. The part towards the north pole is called northern hemisphere and the part towards the south pole is called the southern hemisphere. Okay? Next, intersect. Intersect means divide by passing or lying across it. Divide by passing or lying across it. In the picture you can see two lines that intersect. You can see two blue color lines? Yes. They are arranged in such a way that they crisscross each other, or you can say that they intersect each other at point E. ये रेड कलर का पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि जहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इस रेड पॉइंट को हमने यहाँ पर नेम दिया है पॉइंट E. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट का मतलब है जहाँ पर दो चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस करती है, डिवाइड बाय पासिंग और लाइंग अक्रॉस इट, तो उसे कहते हैं इंटरसेक्ट. नेक्स्ट वन, ग्रिड. ग्रिड मीन्स नेटवर्क ऑफ लाइन्स that cross each other. Network of lines that cross each other. Network of lines मतलब बहुत सारी lines that cross each other, जो एक दूसरे को क्रॉस करती है. यहाँ पर आप देखिए standing line and sleeping lines, that is horizontal lines and vertical lines. स्लीपिंग लाइंस को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइंस. स्टैंडिंग लाइंस को क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइंस. सो दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दे क्रिस क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे मेक अ ग्रिड. ये आपका ग्रिड बन गया. क्लियर? सो ग्रिड मीन्स नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर. Clear, kids? Okay, so here we come to the end of this PPT. Now let's move on to the general video lecture. Okay, I hope you all understood the PPT and the vocabulary words. And it is very interesting, right? Because I make you understand the vocabulary words with the help of few pictures. Now let's move on to the chapter. What is given in the chapter? That is, let's start. Okay, to start with the chapter number 2, latitudes and longitudes. When you look closely at the globe or a map, you will notice that there are many horizontal and vertical lines on them. Horizontal and vertical. I already explained to you through the PPT what are horizontal and vertical. Sleeping lines are called horizontal lines. Standing lines are called vertical lines. Clear? So on the globe or a map, you can see many horizontal and vertical lines. Now, these lines are imaginary lines that help us to locate a place on the earth. They are just imaginary. Actually, there are no lines on the globe or on the earth. अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्चुअली कोई भी लाइन नहीं है, बट ये इमेजिनरी लाइंस है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स व्हिच वी ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड. व्हाई वी हैव मेड? सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू लोकेट अ प्लेस. किसी भी जगह को कहाँ पर वो जगह लोकेटेड है, कहाँ पर वो जगह है,
पूरे वर्ल्ड में वो जगह कहाँ पर है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होनी जरूरी है। Now, there are two types of imaginary lines that are latitudes and longitudes. अब इसे याद कैसे रखना है, latitude and longitude। जो लॉन्ग लाइन होती है ना, उसे longitude करेंगे, और जो स्लीपिंग लाइन है ना, उसे लैटिट्यूड करेंगे। ये लैटिट्यूड है। याद क्या रखना है आपको, सिर्फ ये रखना है कि जो लॉन्ग लाइंस है तो उसे लॉन्गिट्यूड करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। सो दिस इज द वे वी लर्न व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। सो टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। The imaginary lines that run from north to south are called longitudes, north to south, standing line. They are called longitudes, and the imaginary line that run from east to west, east से west जो run होती है, ये east to west, इन lines को हम कहेंगे latitudes. They are known as latitudes. From north to south, longitudes. From east to west, they are latitudes. If we know an exact value of latitude or the longitude of a place, we can tell its location. Exact कौन सी latitude and कौन सी longitude में वो place located है, ये अगर हमें पता है तो उस place को मैप के अंदर लोकेट करना इजी हो जाता है। Let us read about these latitudes and longitudes now. कैसे लोकेट करते हैं? For example, ये मैंने यहाँ longitudes ड्रॉ की है। Let me give it name A, B, C, D. यहाँ पर latitudes बनाई है 1, 2, 3, 1 more, 4. Now here, for suppose I make a स्कूल हियर, यहाँ पर मैंने एक स्कूल बनाई है, ये एक स्कूल है। तो अब स्कूल को मुझे लोकेट करना है, तो मैं कैसे लोकेट करूंगी? Where is the school located? Yes, you can see that it is the longitude C and latitude 2. So you can say the school कहाँ पर है? C2, मतलब C वाली लाइन देखिए और नंबर 2 वाली लाइन देखिए, तो यहाँ पर आपको स्कूल मिल जाएगी, जहां पर C एंड 2 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो ये तो स्कूल के बारे में था। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वर्ल्ड मैप में ले लीजिए, तो यहाँ पर आई से दैट हियर देयर इज इंडिया, इंडिया यहाँ पर है। तो अब इंडिया का लोकेशन क्या होगा? इंडिया B3, so write B3. So अब आपको क्या करना है? B वाली लॉन्गिट्यूड नंबर 3 वाली लैटिट्यूड जहां पर मीट होती है, वहां अगर आप देखोगे तो आपको इंडिया मिल जाएगा। Now this is the way you read latitudes and longitudes, and it will help you to locate any place. It will help you to locate any place. Now latitudes, the imaginary line that run from east to west are called latitudes. These lines are parallel to each other. ये lines देखिए parallel है, मतलब they never crisscross each other. एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। See, for example, अगर मैं ये parallel line draw करती हूँ, तो यहाँ मैं एक्सटेंड भी अगर कर दूं तो भी वो मीट नहीं करेगी। अगर मैंने इस तरह की लाइन बनाई है तो क्या होगा? अगर इस लाइन को मैं यहाँ एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ इंटरसेक्ट हो जाती है। बट ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ ऑल द प्लेसेस द डिस्टेंस इज इक्वल, सारी जगह पर इक्वल डिस्टेंस है, दे नेवर क्रिस क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। सो पैरेलल लाइंस का मतलब समझ में आ गया? Yes. So all the latitudes are
पैरेलल टू ईच अदर। ये सारे लैटिट्यूड्स ये हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे से पैरेलल चलती है, ये एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करती है। फुल सर्कल अर्थ का लगाती है, बट दे नेवर मीट ईच अदर। नाउ these lines are parallel to each other. The length of latitude decrease as we move towards the pole. यहाँ सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। जैसे जैसे पोल की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो वो छोटी 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 होती जाएगी, राइट? यहाँ एक और लाइन में ड्रॉ करूं तो एकदम छोटी आएगी, फिर ऊपर जाके यहाँ एकदम नॉर्थ पोल में अगर आएगा तो सिर्फ एक डॉट रह जाएगा। तो latitudes they decrease as they move towards the pole. जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ोगे ये लाइन छोटी होती जाएगी। Latitudes get decreased. Decrease मतलब कम होते जाना, छोटा होना। For this reason they are also called parallels of latitude. क्योंकि ये एक दूसरे से पैरेलल है इसलिए they are called parallels of latitude. The equator is the longest latitude. सारी ये जो लैटिट्यूड्स होती हैं, यहाँ बहुत सारी लैटिट्यूड्स है, बट इक्वेटर जो सेंटर में है, अर्थ के सेंटर में, ये डार्क लाइन आपको दिख रही है, दैट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। फिर इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते जाओगे टुवर्ड्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ पोल, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल। तो जैसे जैसे उस तरफ बढ़ोगे तो वो उसकी लेंथ जो है लैटिट्यूड की वो कम होती जाएगी। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर जो अर्थ के सेंटर में पास होती है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द साउथ। ये पूरा अर्थ है, यहाँ बीच में से इक्वेटर ने अर्थ को टू हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर का जो हाफ है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नीचे का हाफ है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द साउथ। द पार्ट ऑफ द अर्थ अबाउट द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। Latitudes are measured in degrees. Latitudes को डिग्री में मेजर किया जाता है। आपने मैथ्स में प्रोट्रैक्टर का यूज किया होगा, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ लैटिट्यूड्स को भी हम डिग्रीज में जो है कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। इक्वेटर इज 0 डिग्री। इक्वेटर क्योंकि ये फुल स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेटर को हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। द नॉर्थ पोल इंडिकेट्स 90 डिग्री नॉर्थ व्हाइल द साउथ पोल इंडिकेट्स बाय 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल जो यहाँ वर्ल्ड का नॉर्थ पोल जो है फुल अर्थ का, वो 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल आता है, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल आता है। सो नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एन एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री एस। इक्वेटर इज 0 डिग्री। नाउ there are 90 latitudes to the north of the equator and 90 latitudes to the south of the equator. यहाँ पर मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ड्रॉ की है, बट इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर आप जाओगे तो ऐसी लाइंस जो है लैटिट्यूड्स की वो ऑल टुगेदर 90 है, 90। और इक्वेटर से साउथ की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ भी अगेन 90 टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड 90 टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो कितनी लैटिट्यूड्स है? ऊपर की तरफ 90, नॉर्थ की तरफ, नीचे साउथ की तरफ भी 90। सो देयर आर टोटल ऑफ 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। 81 कैसे हुआ? नॉर्थ की तरफ 90, साउथ की तरफ 90, सो टोटल कितना हुआ? 90, 90, 180 प्लस ये एक इक्वेटर भी है ना, इट इज ऑल्सो लैटिट्यूड, so plus 1, so it becomes 181.
तो कितनी लैटिट्यूड्स हैं? 181. There are some important lines of latitude. Important latitudes. कौन कौन सी है? इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं. Moving towards the north, 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री साउथ में अगर देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. देन 66.5 degree north, you have Arctic Circle. 66.5 degree south, you have Antarctic Circle. So, इक्वेटर की इस तरफ और इस तरफ डिग्रीज तो सेम है, बट डिग्रीज के इनिशियल्स अगर आप देखो तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ. 23.5 कॉमन है. 66.5 कॉमन है. बट नॉर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है. साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सिमिलर में 66.5 डिग्री नॉर्थ है तो आर्कटिक सर्कल, एंड इफ इट इज साउथ यू हैव एंटार्क्टिक सर्कल. एंड यू ऑलरेडी नो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी है? इक्वेटर तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट तो इक्वेटर ही है. अदर देन इक्वेटर यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. In next session we will start with longitudes. So I hope you enjoyed today's session and you have no doubts regarding latitudes. Along with this video, I'll be sending a homework. Please read the instructions properly and answer them. Okay? So if you like this video, please click on the like icon and read the chapter till where I have